شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا ذکر کریں گے کہ وہ 4 نبی کون سے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ وہ انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ مختلف روایات میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور آپ علیہ السلام پر تانا کشی کرتی رہی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں رہیں گے۔ تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ علیہ السلام کا دین قبول کرتے ہیں۔ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دین سے روکا جائے۔ تمام یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور وہ اس ارادے سے جا رہا تھا کہ آج میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے آؤ۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات اپنی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی بہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا۔ اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اسے قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोह में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत से आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा तो उससे पहले दज्जाल का खरूज हो चुका होगा और वो फितनों का दौर होगा, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बातिल निज़ाम का खात्मा करेंगे और यूँ पूरी दुनिया पर मुसलमानों की अजीमुल शान हुकूमत कायम हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस तक रहेंगे और जब आपका इंतकाल होगा तो आपको मदीना की सरजमीन में गुम्बद खज़रा के साए में दफन किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिनकी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़हरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़हर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो और बुरे कामों से बाज आ जाओ। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाह पसंद ना आई और आपने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया और आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। और इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहाँ पर उन्हें कोई भी न ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए और उसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा हो गए। और आपका ताहयात जिंदा होना काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया। उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इसको जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाद रिवायात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र 2 मरतबा कुरान मजीद में मिलता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई थी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि इस आवाज़ का पता लगाओ कि कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। तो उस दौरान उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो हमने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। शब मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रिवायात में मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के अलावा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे भी मौत का ज़ायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई और जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में आपको अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा और आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। ये थे वो चार नबी जो आज भी जिंदा हैं। अल्लाह ताला हमें अपने पाक अंबिया कराम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और सहाबा कराम, अहले बैत और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपनी मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए। आमीन।